ये जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं ये सिर्फ लव रिलेशनशिप्स होते हैं? Karmic relationships very well could be parent and child relationships also. In fact, it starts very often as a parent and child relationship. Meet Kavyal Sadani, a renowned life coach, hypnotherapist and relationship expert who's redefining how we understand healing, emotions and the subconscious mind. With over 15 years of experience helping people transform from within, she blends science and soul to guide countless lives towards balance and clarity. Let's talk to her about karmic relationships, toxicity in relationships and the sensitive subject of marital rape. आपने सुना है औरतों को ये बोलते हुए, जब झोपड़पट्टी में बहुत मार खाते हैं बेचारी तो बोलती है प्यार करता है तभी तो मारता है ना। ये हमारी कंडीशनिंग है। कोई इंसान जब पनिश नहीं करता कि चलो 3 महीने से इसने पनिश नहीं किया है, हमें तो वो भी रिवॉर्ड के जैसा लगता है। हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि ये जो हो रहा है ये टॉक्सिक है, यहाँ से मुझे निकलना है? कभी कभी ऐसे रिलेशनशिप्स में रहना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे रिलेशनशिप्स को छोड़ना और ज्यादा मुश्किल होता है। Why is that? A narcissist and an empath. An empath is somebody जिसको दूसरे लोगों का दुख बहुत अच्छे से महसूस होता है, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। empaths की बाउंड्रीज नहीं होती, वो मना नहीं कर पाते। They don't know how to say no. They want to accommodate all the time. They have an endless supply of love. For a narcissistic partner, an empath is a perfect fit because a narcissist wants to take and an empath wants to give. लेकिन जब एक empath को फिर लगने लगता है कि यार अब कुछ ज्यादा हो रहा, अब ये ठीक नहीं हो रहा, तब empath boundaries सीखता है. But a narcissistic person is low on conscience. They don't see that the fault is with themselves. The narcissistic person who's trying to control you और जो आपको trauma bond में trap करना चाह रहा है, क्या उसे ये चीज़ पता होती है कि मैं ये जानबूझ के कर रहा हूँ? Why are they the way they are? Is it something to do with the gender? Why are women more prone to getting in these kind of toxic relations? Why is the man always the narcissistic most of the time? It's not necessary that it's always a man that is narcissistic. It's not necessary that it's always a man that is toxic. There are wonderful men in the world, but there are multiple toxic women in the world also. Let me also say that women very often use withdrawal of sex as a punishment. And it's not fair. It's not right. Why does a woman get trapped in a marriage which is giving her marital rape? Is it a kind of karmic relation also? Is it a kind of trauma bond? Thank you so much, Kavyal, for coming back to Candid Confessions with Chavi. पहला एपिसोड हमारा बहुत बहुत सक्सेसफुल हुआ एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्स ऑन इट. और रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड अ वेबसाइट कॉल्ड beingwomanwithchavi.com जहाँ पर एक अनोनिमस मैसेज का फीचर है. वहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान जो अपने दिल की बात कहना चाहता है लेकिन नहीं कह पाता है बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर्स और बिकॉज ऑफ टैबूज अराउंड समथिंग, वो मुझे अनोनिमसली वो मैसेज भेज सकते हैं. एंड आई एम not very happy to tell you that the kind of messages that I've been receiving have been very disturbing, and it's an eye-opener for me to know what kind of problems people today are going through. And मेरे दिमाग में बहुत से ऐसे सवाल उठे और मुझे लगा आपसे बेटर कोई इंसान नहीं है जिसे मैं जानती हूँ जो उन सवालों का जवाब दे सके. So I want to begin this conversation, and before I begin, I also want to tell my audience that today we are going to talk about very, very sensitive topics, and Kavyal and I both are trying our best to be very sensitive about it. I only request all of you to listen to this conversation as sensitively as possible and as unbiased as possible. और कोशिश सिर्फ यही है कि वो इंसान जहाँ बैठा है जिसके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जिसके बारे में वो बात नहीं कर पा रहा है, उस तक ये मैसेज पहुँचे, उस तक ये वीडियो पहुँचे ताकि उन्हें कोई होप मिले. With that intention, keeping our fingers crossed, first of all I want to ask you कि ऐसा देखा गया है बहुत बार कि हम कभी किसी इंसान से मिलते हैं जिसकी तरफ हम बस खींचे चले जाते हैं मैग्नेट की तरह. ऐसा लगता है बस यही है दुनिया में और कोई नहीं है. प्यार हो जाता है बेइंतहा. लेकिन समटाइम्स वही रिलेशनशिप आगे चलकर हमें इतनी टॉक्सिसिटी देती है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम बार बार उसी इंसान के पास जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? इन्हें हम कार्मिक रिलेशनशिप्स कहते हैं. कार्मिक रिलेशनशिप्स को
कंफ्यूज मत करिए कि ये ही मेरा लवर है, ये ही मेरा सोलमेट है, इसके साथ ही मुझे ज़िंदगी बितानी है। कार्मिक रिलेशनशिप्स का काम होता है आपको जगाना। ओके। ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म आवर शैडो सेल्फ? हमारे बहुत सारे ऐसे भाग होते हैं, हिस्से होते हैं जिन्हें हम छुपा के रखते हैं, विच आर नॉट द बेस्ट साइड्स ऑफ अस। हमारा जेलसी, हमारा एनवी, हमारा फियर्स, इनसिक्योरिटीज, दीज आर ऑल आवर शैडो सेल्व्स। वी ट्राई टू प्रोजेक्ट आवर बेस्ट सेल्फ। लेकिन एक कार्मिक रिलेशनशिप होता है, वो एक सोलमेट होता है। शायद उसके साथ हमारा रिश्ता किसी और जन्म में अधूरा था। हम लोगों ने अधूरे लेसन सीखे हैं, अब वो लेसन्स पूरे करने हैं। तो ये रिलेशनशिप्स आते हैं और ऐसी इंटेंस फेमिलियरिटी महसूस होती है हमको, जिनको आप बोलते हैं खिंचाव। इट्स जस्ट फेमिलियरिटी, लाइक आई नो यू, आई थिंक आई लव यू, बिकॉज हम सब रोमांटिक लव को बहुत क्रेव करते हैं। वी ऑल वॉन्ट टू बी डिजायर्ड एंड वी वॉन्ट टू बी लव्ड एंड सीन बाय दैट वन पर्सन। लेकिन क्योंकि हम इस इंसान को इतना ज़्यादा पावर दे देते हैं ना, तो ये परमिशन भी दे देते कि तू जो सिखाएगा उसमें से मैं सीख लूँगी। ओके। Only these relationships will have the power to completely wake you up. लेकिन ये रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। आपको डर के एज तक लेके जाएंगे, अबैंडनमेंट के एज तक लेके जाएंगे। ऐसा लगेगा कि पता नहीं, मैं यहाँ पे सुकून ढूंढने गई थी, लेकिन कुछ महीने कुछ साल था यहाँ पे सुकून, अब अशांति हो गई है, अब मुझे सुकून ढूंढने कहीं और जाना पड़ता है, इस सिचुएशन में से सुकून ढूंढने कहीं और जाना पड़ता है। यहाँ पे पेन की जो इंटेंसिटी होती है, वी कंफ्यूज दैट विद डेप्थ ऑफ अ रिलेशनशिप। यहाँ पे जितना ड्रामा होता है, वी कंफ्यूज दैट विद रोमांस, नॉट नेसेसरी। कर्मा या कार्मिक रिलेशनशिप्स का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी ज़िंदगी में वापस आए हैं ताकि मैं आपसे बदला लूँ। ओके। इसका मतलब ये है कि आप मेरी ज़िंदगी में वापस आए हैं कि जो भी अधूरा था इस बार हम पूरा कर ले उसको, एंड देन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टीचिंग मी एवरीथिंग दैट यू कुड टीच मी, एंड आई हैव टॉट यू व्हाट आई कुड टीच यू, होपफुली, इफ वी लर्न। If we don't learn, the relationship continues. Okay. Give me an example of what kind of lesson, what kind of learning. There are 44 lessons of the soul. उसमें sacrifice, fear, doubt, jealousy, envy, friendship, loyalty, passion, कितने ही मैं आपको नाम दे दूँ. There are 44 lessons to learn. And one relationship can teach you so many. पता है, जब मैं before I got into a relationship, I had a very different view of who I was. And this will apply to everybody. सबको लगता है यार मैं तो कॉलेज में इतनी केयर फ्री थी, तुमको क्या पता, मतलब I was the cool girl और किसी चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो ना जब से, तब से ये गुस्सा ये तुम लाए हो, ये जेलसी तुम महसूस कराते हो मुझे, ये जो इनसिक्योरिटी है ना वो तुम्हारी वजह से है। नहीं 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 नहीं, ये सब मेरे ही हिस्से हैं। तुम सिर्फ एक मिरर बन के आए हो, तुम मुझे दिखा रहे हो कि ये सब ऑलरेडी मुझ में एग्जिस्टिंग है। अब या तो मैं मेरे नसीब को ब्लेम करूं, मेरे फेट को ब्लेम करूं कि ये मेरे नसीब में ऐसा ही था, अब मैं क्या करूं। अगर हम ये करते हैं तो हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हैं जो हमारी है कि भैया एनवी, जेलसी, रिग्रेट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये जो तुम्हें महसूस हो रहा है ना, इसको साफ करो, इससे ऊपर उठो, understand, learn something from this, change your patterns, change your thinking, but we don't want to do that. तो वैसे हमारे नसीब में यही था, अब क्या करें। तो ये जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, ये सिर्फ लव रिलेशनशिप्स होते हैं, और कुड यू ऑल्सो हैव फ्रेंड्स और समथिंग? Karmic relationships very well could be parent and child relationships also. In fact, it starts very often as a parent and child relationship. हमारे पास दुनिया में कितने ही ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि पेरेंटिंग का मतलब कंट्रोल करना है। अब अगर बच्चा आपके कंट्रोल के हिसाब से चल रहा है तो आप उसे रिवॉर्ड देंगे,
अगर आपके कंट्रोल के हिसाब से नहीं चल रहा तो आप उसे पनिशमेंट देंगे। कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो खुद ही इमोशनली डिसरेगुलेटेड होते हैं, अनरेगुलेटेड होते हैं, उनको खुद को इमोशनल कंट्रोल नहीं है, शायद उनके खुद के एंग्जाइटीज़, डिप्रेशन, ट्रॉमा, फियर, फोबिया जो भी है। अब ह्यूमन स्पीशीज़ एक ऐसी स्पीशीज़ है जहाँ पे एक बच्चे को अपने माँ बाप की सख्त ज़रूरत है बढ़ने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। अगर आप बिल्लियों को भी देखेंगे ना तो उसका किटन बिछड़ भी जाएगा 6ठे दिन पे तो भी वो सर्वाइव कर लेगा अकेले। अ ह्यूमन बेबी इज़ नॉट लाइक दैट। कुछ भी करके उन्हें उनके पेरेंट्स का वैलिडेशन चाहिए ही चाहिए, अटेंशन चाहिए ही चाहिए, वरना बच्चा मर जाएगा। राइट। अब अगर एक बच्चे को ऐसा पेरेंट मिल जाता है जो अटेंशन नहीं देता ज़्यादा, या अपने ही उलझनों में बिज़ी रहता है, या मार देता है, तो भी बच्चा उसे छोड़ के तो नहीं जा सकता। तो बच्चा अब ढूंढता है, उस मोमेंट को ढूंढता है कि चलो मम्मी ने मार दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद 4 दिन के बाद आके एक चॉकलेट भी दी थी ना, तो वो चॉकलेट मतलब मेरी मम्मी एक अच्छी इंसान है। पापा मुझे अबैंडन करके चले गए तो ठीक है, उनकी कुछ मजबूरी होगी, लेकिन जब मैं 16 साल की थी तब वापस भी आ गए ना। तब मुझे एक बार प्यार से हाथ भी लगा के ये बोल दिया ना दैट बेटा आई एम सॉरी बट आई लव यू। तो बिकॉज वी नीड आवर पेरेंट्स टू लव अस सो मच, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रॉमा और रिवॉर्ड के बीच में, दैट इट्स अ केमिकल सूप। I'm sorry. It's too much. It's too much. It is too much, and that is unfortunately the story of so many people. Thank you. Is my makeup okay? Your makeup is just fine. Just because we have to survive in a relationship, because we need relationships, we ignore the bad and we desperately look for the good. जब बैड होता है तब इतनी हमारी स्टेट लो हो जाती है कि जब वो एक गुड आता है ना तो डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सब हैप्पी हार्मोन सब बाहर आ जाते हैं, दैट ओके दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड, लेट्स स्टिक विद दिस। चलो बुरा वक्त भी आएगा लेकिन फिर भी अच्छा वक्त आएगा। आपने सुना है औरतों को ये बोलते हुए, जब झोपड़पट्टी में बहुत मार खाते हैं बेचारी, तो बोलती हैं मारता है, प्यार करता है तभी तो मारता है ना। Right. ये हमारी कंडीशनिंग है। इस पनिशमेंट रिवॉर्ड को ना बहुत नॉर्मलाइज किया गया है हमारे सोसाइटी में। तो हम एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो बार बार पनिशमेंट आ रही है, एक तो लगता है कि ठीक ही है यार, मतलब ये तो उनका नेचर है, वी डोंट वांट टू सी इट एज पनिशमेंट। कभी कभी कोई इंसान जब पनिश नहीं करता कि चलो 3 महीने से इसने पनिश नहीं किया है, हमें तो वो भी रिवॉर्ड के जैसा लगता है। Just the fact that you haven't punished me feels like a reward. Can you believe that? तो ये बताइए कि सबसे पहले तो लाइक यू सेड कि हमें लगता है कि ये पनिश नहीं कर रहा है या कर रही है तो ये रिवॉर्ड है हमारा। हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि ये जो हो रहा है ये टॉक्सिक है, यहाँ से मुझे निकलना है? व्हाट आर दोज रेड फ्लैग्स टू लुक आउट फॉर? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इन योर ओन लाइफ एज अ थर्ड पर्सन? बिकॉज आई एम श्योर बाकी सबको दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, आप ही को नहीं दिख रहा है। That's the answer. जब अगर आप अपने ही रिलेशनशिप को एज अ थर्ड पर्सन देखें, या अगर आप अपने बदले अपनी बेस्ट फ्रेंड को यहाँ पे डाल दें और ये रिलेशनशिप को देखें, तो आप उसे क्या बोलेंगे? यार निकल जाए यहाँ से, ये गलत है, ये सही नहीं है। ऑलवेज प्लेस समबडी एल्स इन योर शूज। या तो ये देखें, अगर आपके बच्चे हैं, ये देखें कि अगर ये आपके बच्चे को होता तो क्या आपको लगता कि ये ठीक है? या तब आप उसमें रेड फ्लैग्स ढूंढ पाते, आप पिन पॉइंट कर पाते। ज़्यादातर ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप्स में ना आपको एक इंसान ऐसा मिलेगा जो बहुत एम्पैथेटिक है, जाने दो, छोड़ दो, बेचारा, यू नो, वी जस्टिफाई थिंग्स।
और जहाँ पे भी एक बहुत एम्पैथेटिक इंसान होता है, बहुत लाइक्लीहुड है कि उसको दूसरा जो पार्टनर मिले वो थोड़ा सा ऐसा नार्सिसिस्टिक, सेल्फिश, अपने मूड से रिलेशनशिप को चलाने वाले या कंट्रोल करने वाले या पोजेसिव, फियरफुल लोग मिले। तो जो एम्पैथेटिक इंसान होता है वो हमेशा यही स्क्रिप्ट लगा के बैठेगा कि सारे रिलेशनशिप्स में ठीक है ना, सबको कुछ ना कुछ बैगेज तो होता है, ये मेरा है। और वो चलाते जाते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आपका सुकून चला जाएगा। आपको ओके, वन सिंपल थिंग, अगर उनका टेक्स्ट का नोटिफिकेशन आता है तो क्या आपको खुशी होती है या आपको स्ट्रेस होता है? अब क्या होगा? अगर वो घर पे नहीं है और बेल बजती है, उनके आने का टाइम हो गया, तो आप खुशी खुशी उठते हैं या आपको लगता है ओह माय गॉड सब सही करो? दोज आर वेरी सटल साइंस। उसके लिए आपको ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी साइकोलॉजिकल टेस्ट दैट यू कैन गो थ्रू, बट दीज आर वेरी स्मॉल सटल साइंस दैट यू कैन लुक फॉर इन योर ओन हाउस। एंड इन अ कार्मिक रिलेशनशिप लाइक दिस, जहाँ पे आप कहनी है कि एक इंसान है जो बहुत क्या वर्ड यूज़ किया था आपने, जो बहुत नार्सिसिस्टिक है और दूसरा जो है एम्पैथेटिक है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कोई लेसन सिखा रहे हैं कि इज इट ओनली वन पर्सन हियर लर्निंग द लेसन? We will never find ourselves in a one-way lesson. It is always two ways. A narcissist and an empath. An empath is somebody जिसको दूसरे लोगों का दुख बहुत अच्छे से महसूस होता है, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एम्पैथ्स की बाउंड्रीज नहीं होती, वो मना नहीं कर पाते, दे डोंट नो हाउ टू से नो, दे वांट टू अकोमोडेट ऑल द टाइम, दे हैव एन एंडलेस सप्लाई ऑफ लव कि लेट मी लव यू, लेट मी हील यू, लेट मी टेक केयर ऑफ यू, आई डोंट नीड एनीथिंग, बस तुम हो ना, मैं तुमको दे सकूँ, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। For a narcissistic partner, an empath is a perfect fit because a narcissist wants to take and an empath wants to give. लेकिन जब एक empath को फिर लगने लगता है कि यार अब कुछ ज़्यादा हो रहा है, अब ये ठीक नहीं हो रहा, तब empath boundaries सीखता है. At that time they learn to say no, enough. I can't do any more than this. This is now costing me my health. I am not the same person anymore. मुझे अब जितना गुस्सा आने लगा है उतना गुस्सा मुझे पहले कभी आता ही नहीं था. अब तुमसे प्यार नहीं हो रहा, तुमसे डर लग रहा है, ठीक है? That is when they learn to say no. And a narcissist also has a lesson to learn that if you are going to continue this kind of behavior with everybody, people are going to come and leave, come and leave, come and leave. But a narcissistic person is low on conscience. They don't see that the fault is with themselves. So they just feel like, इतना भी नहीं कर पाई तो this was not even love. I'm better off. Okay? So both of them have very important lessons to learn. And let's say in a relationship like this, one person learns the lessons. Yeah. Okay? And decides to break free. Yeah. Now, is this person finally free from this particular lesson that he or she was supposed to learn? Yes, if they truly learn the lesson and they learn to apply it in the future, yes. तो अब अगली लाइफ में उन्हें इस चीज से नहीं गुजरना पड़ेगा. शायद एक आध टेस्ट आएगी. Okay. शायद इसी लाइफ में आ जाए. इसी लाइफ में वापस आ जाए. एंड किसी भी चीज को आप 3 बार रिपीट कर लो ना. That no. Then you know that you've mastered it. But they will come like subtle tests. कि याद है पिछले जन्म के, हम उन्हें संस्कार बोलते हैं. पिछले जन्म के संस्कार, पिछले जन्म का वो लेसन याद है, वो अब नहीं चलेगा. That's not okay. And in this case, what happens to the other partner who did not learn the lesson? They keep repeating their lifetime. They'll find somebody else to do the same. They'll find somebody else and somebody else and somebody else again all the time. And tell me, is this the same thing as trauma bonding? Trauma bonding is a royal, confusing mix of pain and pleasure, of hopelessness and hope, of love confused with loyalty. Okay? आपने Stockholm syndrome सुना है? Stockholm syndrome is a phenomenon or a mental state जहाँ पे जिसने आपको, इमेजिन करिए कि आप बैंक में थे
और बैंक में कोई लुटेरे आ गए, ठीक है। अब ये जो लुटेरे हैं उनकी गन है आपके सर की तरफ और आप डर के बैठे हैं, आप भगवान को याद कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप तो मरने वाले हैं बस यहाँ पे, एंड यू आर लिटरली थिंकिंग दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ माई लाइफ। अब ये जो टेररिस्ट है या जो भी आतंकवादी है वो आपको बख्श देता है, आपको कुछ कर नहीं रहा है, कैप्टिव बिठा के रखा है वहाँ पे, ठीक है। अब आपका स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए आपने आपके दिमाग में एक स्टोरी बना ली, ये अच्छा इंसान है, इसकी कोई तो मजबूरी होगी, हाँ उसने ये ऐसा ऐसा सब किया लेकिन देखो उसने मुझे मारा नहीं। द ओनली वे to feel safe when you are already in a trapped relationship is to believe that you are close to this person. आलिया भट्ट की आपने मूवी देखी होगी अगर, हाईवे, where she falls in love with her own kidnapper. That is Stockholm syndrome. Okay, we don't want to feel high level of stress. So we just feel like, no, this is a good person, this is a good person, this is a good person. That is trauma bonding. जब आप सबसे ज़्यादा ट्रॉमा में होते हैं, जो आपको ट्रॉमा दे रहा है उसी के साथ आप बॉन्ड बनाएं तो आपको लगेगा कि ठीक है मेरा दुख यही है या मेरा दर्द यही इंसान है, लेकिन मेरी तो दवा भी यही है, दवा तो यहीं से आएगी ना। मैं अगर उसको थोड़ा और ज़्यादा प्यार करूं तो शायद वो कम टॉर्चर करेगा, और जब कम टॉर्चर करता है तो फिर से मुझे लगता है कि देखो कितना प्यारा इंसान है, कितना अच्छा इंसान है। जब आप ये रिलेशनशिप किसी और को समझाने को जाते हो, कोई नहीं समझेगा, तो आप बोलोगे कि यार इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, यू वोंट अंडरस्टैंड, बट यू विल कीप जस्टिफाइंग देयर बैड बिहेवियर बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव इट, बिकॉज देयर इज नो वे आउट। कभी कभी ऐसे रिलेशनशिप्स में रहना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे रिलेशनशिप्स को छोड़ना और ज़्यादा मुश्किल होता है। Why is that? Because the person that is there with you in this relationship, जो आपको ट्रॉमा दे रहा है, वो आपको गिल्ट, शेम, ग्रीडी, बहुत सारे लेबल्स दे सकता है कि तुम ही ऐसी हो, मतलब तुमको और कोई प्यार करने वाला मिल ही नहीं सकता। जिस तरीके से मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ उस तरीके से कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रखने वाला, तुम बुद्धू हो, कुछ नहीं समझ में आता तुमको। और इनका एक पैटर्न होता है कि जब कोई नार्सिसिस्ट आपके लाइफ में आता है तो सबसे पहले वो आपको लव बॉम्ब करते हैं, मतलब जब प्यार दिखाते हैं तो इतना प्यार दिखाते हैं कि आपको लगता है भाई इससे ज़्यादा खूबसूरत तो कुछ हो ही नहीं सकता। दैट्स कॉल्ड लव बॉम्बिंग, ओके, बॉम्बिंग द पर्सन विथ सो मच लव, एंड देन दे स्लोली 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 बिगिन टू विदड्रॉ। फिर जो आपके करीबी लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनसे आपका रिलेशनशिप काट देते हैं। Okay. कि नो दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, आई डोंट लाइक यू टॉकिंग टू दैट पर्सन, देखो ये इसने तो तुम्हारा एडवांटेज लिया है, इनके साथ मत रहो। तो आपका जो बाहर का सपोर्ट होता है ना, वो धीरे धीरे आपसे कट जाता है। दे स्टार्ट डेवलपिंग अ सेंस ऑफ मिसट्रस्ट कि नो दिस पर्सन लव्स मी, मे बी ही मस्ट बी राइट, हाँ देखो उसने ये किया तो था। इट्स लाइक ब्रेन वॉशिंग, ओके। अब आपको बाहर से किसी और की आवाज़ सुनने की इजाज़त नहीं है, और बाहर के लोग एक पॉइंट के बाद आपको बोलना बंद कर देंगे कि यार तुझे कितनी बार बताएं, ठीक है, दिस इज़ योर चॉइस, दिस इज़ योर चॉइस। सो नाउ द ओनली एक्टिव वॉइस इन योर लाइफ इज़ दिस पर्सन, एंड यू बिलीव दैट पर्सन। एंड देन जब उनको लगता है, कभी कभी आप कुछ एक पॉडकास्ट देखेंगे, आपको लगेगा यार ये तो मेरी सिचुएशन है, हाँ. और आप थोड़ा रिबेल करना शुरू कर देंगे, तो पहले आपको साम दाम दंड में जो भी चलेगा, दे विल यूज़ दैट विथ यू। इफ़ दे फील लाइक नहीं उनका ग्रिप छूट रहा है ना, तो वापस आके दे विल बी लाइक नो आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई हैव अंडरस्टूड, आई वाज रॉन्ग, ओके आई विल गो टू थेरेपी फॉर यू, नो प्रॉब्लम। दे विल प्रॉमिस that they are going to make the changes, but they may not make the changes. So when this person is behaving like this, the Yes. narcissistic person who's trying to control you और जो आपको Yeah. trauma bond में trap करना चाह रहा है, क्या उसे ये चीज़ पता होती है कि मैं ये जानबूझ के कर रहा हूँ? Yeah, a lot of people know, and a narcissist will never find themselves in therapy. They will never go, never. But a lot of people actually just don't know. That is just the way they have been.
that is the way they have seen their own parents, or that is the way they have seen life, they will find ways and means to justify what their behavior is. Now the empath in me wants to ask कि ये जो narcissist इंसान हैं, जी. इनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है? Why are they the way they are? कभी कभी एक बहुत डीप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए इंसान एक्सटर्नल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पालता है और उसी कॉम्प्लेक्स को बिलीव करने लगता है और इतना डीपली रिहर्स करता है अपने दिमाग में अनकॉन्शियसली दैट नो दिस इज हु आई एम, 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 दैट दे बिकम इट. तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि पैदाइशी दे हैव बीन रॉन्ग. Okay. उनके सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, पेरेंटिंग, लैक ऑफ गुड पेरेंटिंग, वो क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, what they are inspired by, it makes them like that. And of course, we have psychopaths, we have sociopaths who have zero sense of feeling for the other person. It's all about themselves. So it takes all types of people to make a world. And it's absolutely justified in their head. I mean, they don't need the question of it being justified No. or not is also not there. No. Okay, I want to now talk about a kind of relationship which is very disturbing. And again, I think you're the best person to address this. Talking about toxic relationships. Why does a woman get trapped in a marriage which is giving her marital rape? Is it a kind of karmic relation also? Is it a kind of trauma bond? Is it a personal choice? Is it circumstances? In our society, silence is confused with respect. And as women, हमें ये बोला गया है कि जब तुम्हारी शादी हो जाती है, तुम्हारे हस्बैंड की फिज़िकल नीड्स को पूरा करना तुम्हारी ड्यूटी है. ये एक्चुअली हमारा प्रिविलेज है. To be able to get sexually intimate with our partner is a privilege for both. It's not a right for one and a duty for one. ऐसा नहीं है कि ये मर्द के लिए right है और औरत के लिए ड्यूटी है. It is a privilege that दोनों एक दूसरे को उनकी फिज़िकल नीड्स पूरी करें, उन्हें नर्चर करें, उस तरीके से वो लोग क्लोज आएँ, इंटीमेट हो जाएँ. It's about finding heaven together. बट कंडीशनिंग के ठीक है, हाँ तो होता ही है, सब घर में होता है. बहुत औरतों को, एवरी मदर विल टेल देयर चाइल्ड कि मुझे भी कभी कभी मन नहीं होता तो क्या हुआ, लेकिन ये तो करना ही पड़ता है ना. तो एक तो ये वाला करना ही पड़ता है का जो स्क्रिप्ट है वो हमें चेंज करना पड़ेगा. जनरलाइज नहीं कर सकते हम इस बात को, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन एज जब पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज हो जाता है ना, तो एक जो औरत है उसकी सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, क्योंकि फॉर हर सेक्सुअली शी वॉज वेरी एक्टिव, क्योंकि वी हैड टू हैव चिल्ड्रन. आफ्टर ऑल दैट इज ओवर, in her mid 45 somewhere 46 she will start hitting a sexual low. लेकिन एक जो आदमी होता है, he could be very sexually active till the age of 70-75 also, till he is alive. This problem comes at that age where a woman is not wanting to be in a sexual relationship, but the man feels like, hey, what's happening? Consent बहुत ज़रूरी है शादी के बाद भी, क्योंकि रिस्पेक्ट वन वे नहीं होती, रिस्पेक्ट टू वेज होती है. हाँ जी, आप अपने घर में एक ऐसी औरत को लाए हैं जो आपके पेरेंट्स का भी ध्यान रख सकती है, आपके घर का, आपके बच्चों का ध्यान रख सकती है, लेकिन जब सेक्स की बात होती है तो आप किसी और की पर्सनल स्पेस में उनके बॉडी में एंट्री ले रहे हैं. दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. अपने बॉडी को पूरी तरीके से समर्पित करना इज़ नॉट ईजी. It will always need consent, whether you are married or whether you are not married.
लेकिन हमारे देश में ना मर्दों को सिखाया नहीं जाता औरतों को रिस्पेक्ट देना. सिर्फ औरतों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करना उन्हें लगता है कि वो उनका राइट है. ओके, व्हाई डज अ वुमन स्टे इन इट? शी इज स्कैर्ड. उसके पास कोई और जगह है नहीं जाने को. अब जो वुमेन हैं, अब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, दे आर मोर अवेयर. तो वो अपने जुगाड़ कर लेते हैं दैट सम डे इफ दिस डजंट वर्क एटलीस्ट आई एम नॉट ऑन द स्ट्रीट्स. लेकिन ज़्यादातर महिलाओं के पास वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं जा सकते. शायद उनके पेरेंट्स फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हैं या इमोशनली सपोर्टिव नहीं हैं या वो समझेंगे नहीं इस बात को. बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो उनका हस्बैंड है वो फाइनेंशियली प्रोवाइड कर रहा है और उन्हें लगता है कि मैं अगर अकेली चली गई तो मैं अपने बच्चों को ये लाइफ नहीं दे पाऊँगी. सोसाइटी का शेम, बाहर जाके क्या बताऊँगी मैं. तो ठीक है, दिस इज़ अ नोन डेविल, आई विल पुट अप विथ इट. So I want to say that today, even the women who are educated, who are standing on their own 2 feet, who are financially independent and independent in every other way, are still going through a lot of toxicity at home. Yeah. तो साइकोलॉजिकली क्या होता है उनके दिमाग में कि वो उससे नहीं या तो निकलना चाहती नहीं है या तो निकल पाती नहीं है, या व्हाट इज इट दैट स्टॉप्स दीज काइंड ऑफ वुमेन? अब इनका भी स्क्रिप्ट चेंज हो गया है नाउ बिकॉज द वुमेन आर बिकमिंग सो इंडिपेंडेंट. और अगर वो निकल जाती है ना तो उनके पेरेंट्स उनको खुद बोलते हैं कि पहले से तुमको बोला करते थे हम लोग कि इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट मत बनो, ये देखो ये तुम्हारा नतीजा, योर फॉल्ट. your fault. Now, you just don't know how to adapt, you don't know how to compromise, you don't know how to be a woman. So again they stay because they feel like वापस लोग मुझे ही बोलने वाले हैं कि ये तो सब मेरी वजह से है. And they don't want to rock the boat. और कभी कभी ये भी होता है that a woman now is finding so much satisfaction at work कि वो घर से ना वर्क में एस्केप कर जाती है. 90% of my joy is met at work. 10% है ना इधर चलो. Why to disturb everybody and everything? डिवोर्स भी आसान नहीं है. इन लॉ से भी डील करना पड़ेगा, हस्बैंड से भी डील. Just take a deep breath and deal with it. Let it go. But I will Is that wrong? escape into tolerating something and not learning your lesson from it. The pattern will keep repeating. You're still not learning. You're escaping. Escape is not learning. Escape is running away. True. Running away is never going to help. आपने ये नोटिस किया कि बहुत सारी शादियों को ज़िंदगी भर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. कोविड आया ना, मैक्सिमम डिवोर्स केसेस केम अप इन कोविड. बिकॉज अब क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा साथ रह रहे थे, दैट्स व्हेन दे रियलाइज झेल नहीं पा रहे हम एक दूसरे को. That escape they did not get. एस्केप तो बंद हो गया. ऑफिस तो जा नहीं सकते, बाहर तो जा नहीं सकते, लेकिन एक साथ भी रह नहीं सकते. दैट्स व्हेन द डिवोर्सेस हैपन. So most people feel like, yeah, I'm getting joy in so many places. Or there is an extramarital affair which is giving them joy. So they find their escape. So इधर चला लेते. And what about women and men both, जो इस तरह की relationships में हैं, बहुत टाइम से हैं और अब निकलना चाहते हैं. They've understood that this is where I need to learn a lesson. I need to set my boundaries. I need to learn how to respect myself and break free. कहाँ पे वो हेल्प कहाँ से ले सकते हैं? What are the things that they should identify कि okay, this is my support system now? क्या करना चाहिए उन्हें? सबसे पहले तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हैं, आपको पता है, आप you're aware और आपको बाहर आना है, ये आप अकेले से नहीं होगा. ये आपके फ्रेंड्स की एडवाइजेज अलग से, that also will not be enough. It'll all help, but it won't be enough. You definitely need to see a therapist. Okay, please go and see a counselor, a therapist, somebody who is qualified to help you through this. लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ जो हमें करना ज़रूरी है. सबसे पहले, stop justifying their bad behavior. Second, stop romanticizing the good times. जैसे मैंने आपको पहले कहा कि वो डेफिनेटली आपको गुड टाइम्स दिखाएंगे, बहुत अच्छे टाइम्स दिखाएंगे. और हमारे ब्रेन का एक मैकेनिज़्म है, जब भी कोई ब्रेकअप का सिचुएशन आता है ना,
क्योंकि हमारे ब्रेन को अच्छा नहीं लगता कि हम अकेले हो जाएं या हमारा पार्टनर हमसे निकल जाए, तो वो एक ट्रिक प्ले करता है। जो अच्छी यादें थी उसको मैग्नीफाई करता है और जो बुरी यादें थी उसको मिनिमाइज कर देता है। इट वॉन्ट्स यू टू समहाउ एनी हाउ स्टे इन दैट रिलेशनशिप। सो स्टॉप मैग्नीफाइंग द गुड टाइम्स, ये सोच के कि नहीं यार लेकिन वो 1 साल पहले तो कितना अच्छा था, मैं थोड़ा और बर्दाश्त कर लूँ ना तो वो वापस आ जाएगा। फ़िलहाल शायद वो डिप्रेशन में है, फ़िलहाल शायद उसके काम का स्ट्रेस है, फ़िलहाल शायद पैसे का नुकसान हुआ है। ओनली इफ़ आई वेट इट आउट things will go back to how they used to be. Stop doing that. Third, stop thinking it's all your fault. Fourth, believe their actions, not their apologies. Fifth, जब आप ऑलमोस्ट, ये सब रिलेशनशिप्स में होता है कि चलो हम 1 महीना नहीं बात करते हैं और वो 1 महीना इतना दुख या दर्द होता है कि ऐसा लगता है कि हमारे फेफड़े हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे, ऐसे ही इट इज़ दैट पेनफुल। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट आपने रखा हुआ है ना कि 1 महीना तो नहीं ही बात करनी है, ओनली देन वी विल बी एबल टू कोप अप, डोंट ब्रेक इट, डू नॉट ब्रेक इट। अगर आपको एक टेक्स्ट आता है कि मुझे एक और मौका दे दो, मैं शायद समझ चुका हूँ कि तुम्हारी क्या तकलीफ़ें हैं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, इन दैट एक्सप्लेनेशन इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट दे विल लीव यू मोर कन्फ्यूज्ड। Another one is that अगर आपने उनको बहुत सारे चांसेस ऑलरेडी दे चुके हैं और कुछ नहीं चेंज हुआ है या नेग्लिजिबल कुछ चेंज हुआ है, डोंट गिव देम another one. Believe their actions, not their words. Words are very easy. But believe their actions. वो आपको एक प्यार के मोमेंट में ये भी बोलेंगे मैं तुम्हारे लिए चांद तारे लेके आता हूँ, लेकिन एक बिजी डे पे आपके लिए ब्रेड भी नहीं लाएंगे नीचे से. Believe their actions. And sometimes just because we don't want to feel the pain, हम instant gratification में चले जाते हैं कि नहीं अभी मिल लेती हूँ, अभी मैं ठीक हो जाऊँगी, बाद में देखते हैं फिर से I will separate out. वो कभी नहीं होगा. Instant gratification is the enemy of long term change. अभी का अभी मुझे comfort मिल जाए तो मैं कोप अप कर पाऊंगी, फिर मैं ब्रेकअप कर पाऊंगी. सॉरी, यू आर बैक इनटू द ट्रैप अगेन. फिर आपने एक एग्जिट मिली रिलेशनशिप में, वो आपने मिस कर दी. अब 2-3-4 साल और निकल जाएंगे जब तक कोई और बड़ा घमासान ना हो, और अब वो समझ चुके हैं कि अब ये नहीं रुकेगी. तो ये जो घमासान होने वाला है ना, जो हर महीने होता था, अब वो 2 साल के बाद होगा शायद. The time in between the problems will increase because now they will become more careful, but it's a strategy. It's a strategy to keep you. एंड टेल मी कि जो इंसान ऐसी रिलेशनशिप में स्टक है, डू यू थिंक दे ऑल्सो हैव अ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी समवेयर? क्या उनका खुद का भी ये पैटर्न है कि ये नहीं तो कोई और, लेकिन रिलेशनशिप तो मुझे टॉक्सिक ही पसंद है? डू यू थिंक इट्स ऑल्सो समवेयर देयर ओन, आई डोंट नो, लाइक पास्ट लाइफ थिंग? People confuse this toxic thing. It's actually dramatic. Okay, people confuse dramatic for romantic. जहाँ पे पीसफुल रिलेशनशिप्स होते हैं ना, कि कुछ नहीं बोला, साइलेंस है तो भी हम दोनों कंफर्टेबल हैं, वो रिलेशनशिप्स बोरिंग हो जाते हैं बहुत जल्दी से. राइट. ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, उनका एक कार्मिक लेसन ये भी है कि आप शादी करेंगे किसी बड़े बोरिंग पार्टनर से और आपको लगेगा दैट नो दिस इज़ नॉट गुड इनफ फॉर मी, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब ये बंदा तो मुझे प्यार भी नहीं करता. और फिर एक बड़ी ड्रामेटिक सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली रिलेशनशिप आएगी. And there you feel like that's it, all the passion, all the love, all the everything you feel over there. Eventually in a couple of years time it may start feeling like no, this is too much for me, and the partner that I have at home is actually not that bad. So this situation can actually bring you back home to the partner that you are married to. But again, we have to learn our lessons. Don't confuse peace with boring and dramatic with romantic. Peace can also be very romantic. I think we pretty much covered everything, and you already gave a message also to somebody who's feeling trauma bonded or stuck in a relationship like this.
Anything else that you want to add before we leave? हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे खुद के तरफ है. आपको दुनिया हिप्नोटाइज कर देगी ये सोचने में कि अगर आप खुद पे फोकस कर रहे हैं तो आप सेल्फिश हैं. लेकिन जब तक आप नहीं सीखेंगे खुद पे फोकस करना, खुद को हील करना, जो हमारे टूटे फूटे भाग हैं उनको इकट्ठा करके अगेन टू फाइंड होलसमनेस विद इन आवर सेल्स, तब तक आप टूटे फूटे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते ही रहेंगे. जजमेंट में मत बैठिए, ये बुरा है, ये गंदा है, ये नार्सिसिस्टिक है. डोंट सिट इन जजमेंट. Just sit in, what is this teaching me? Everything is sacred. According to me, a narcissistic partner in your life is also sacred because they are teaching you something. आप नहीं सीखने वाले थे इसके बिना. आप प्यार से सीखने वालों में से नहीं है. तो आपको ये ड्रामेटिक रिलेशनशिप आया है. Bow down to that energy and say thank you. Thank you for whatever it is that you are bringing into my life. मैं ये समझ गई हूँ कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता. और अब मैं वापस घर जा रही हूँ, मेरे घर. आई एम गोइंग बैक होम टू मी. यू आर योर ओन होम. Other people are welcome to be in your own home. But it's not like somebody else outside can be the source of your joy. No, that is you. एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है अभी लास्ट कि in the entire conversation we kind of focused on women being the victim here. Jabki it can happen both ways. Yes. But I want to ask you, in my experience also, in all the messages that I get also, it's always the woman. Majority of times it is the woman. Sometimes एक आधा message मुझे किसी आदमी से आया है या मैंने सुना है कि some man is being emotionally exploited. Yeah. Is it something to do with the gender? Why are women more prone to getting in these kind of toxic relationships? Why is the man always the narcissistic most of the times? No, Don't want to I'm generalize. so glad you brought this up. I wanted to speak about this myself. कि it's not necessary that it's always a man that is narcissistic. It's not necessary that it's always a man that is toxic. There are wonderful men in the world. इतने अच्छे, इतने नेक men हैं. लेकिन उनकी भी पेरेंटल पैटर्न देखनी पड़ती है. शायद उनके पास एक ऐसी मदर थी जिनका वैलिडेशन उनको नहीं मिला, तो वो अब एक टॉक्सिक सी महिला से अट्रैक्ट हो जाते हैं इस उम्मीद में कि अरे इसकी पर्सनालिटी है ना, ये सिमिलर है मेरी मम्मी के जैसे. नाउ दिस दे आर नॉट कॉन्शियस ऑफ दिस. Correct. दे विल जस्ट अट्रैक्ट इट बिकॉज इट्स फेमिलियर. बट देयर इज अ बिलीफ सिस्टम कि जो प्यार मैं अपनी मम्मी से नहीं पा सका ना, वो मैं शायद यहाँ मुझे मिल जाएगा. देयर इज अ होप दैट आई विल चेंज इट हियर. But there are multiple toxic women in the world also. And just the way we are talking about marital rape, let me also say that women very often use withdrawal of sex as a punishment Oh. or as an incentive. तुम ये करो, then you can have sex with me. तुमने ऐसे ऐसे नहीं किया, you can't have sex with me. And it's not fair. It's not right. Women का सुपर पावर है मैनिपुलेशन, जैसे एक आदमी का पावर है अग्रेशन. लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करते. बट इट इज़ द वुमन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो दैट डोंट डू दैट. यू हैव अ गुड मैन, डोंट डू दैट. दिस इज गोइंग टू कम बैक टू यू. A lot of women nowadays, they look at marriages straight away like a contract. What are you bringing? Acha, you're bringing this, you're not good enough. So they are actually going husband shopping. That's not how you select a partner. And if the person is not meeting my needs, I'm sorry, you're not good enough, I'm moving on. Why should I compromise? I'm an MBA, I've done this, I've done that, I make more money than you. Why should I? Then you have not understood marriage. Then don't marry. Then don't marry. Then it's okay to be by yourself. But there are a good number of women out there who are as narcissistic and manipulative.
So I think it's safe to say that there is a lot at play here. Yes. And it's not gender specific. No. It depends on how you were raised. It depends on what kind of content you witnessed Yes. as a child, as growing Yes. up. What are the kind of different people that you interacted with? What are the gaps that you personally have in your own life which you don't even know about? And all these things decide what kind of character you're going to have. Thank you so much, Kavyal, for having this conversation. I think relationships are so complex as are human beings, and I think because अब social media इतना हो गया है, हमें इन चीज़ों के बारे में पता ज़्यादा चलता है, दूसरों की लाइव्स में क्या हो रहा है इसके बारे में हमें पहले पता ही नहीं होता था. हमें लगता था शायद यही नॉर्मल है, जो हमारी लाइफ में हो रहा है वही नॉर्मल है. एंड नाउ वी हैव द अवेयरनेस टू अंडरस्टैंड what are the different things that are happening. But I want to leave all of you with this thought that if you are in a relationship which you feel is toxic, like she said, just get out of your body and try to see yourself as an outsider. Try to see yourself as a third person to decide कि ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है. Is this something that I would advise my loved ones to stay in if it was happening with them? That's the first thing you do. And I think to understand what is happening in your life and then accepting that yes, this is happening with me, and then moving on to decide what is the next step that you're going to take. And as she said, you need professional help, because हम normal लोग जो हैं अपनी लाइफ नहीं डिसाइफर कर पाते हैं, दूसरे की लाइफ में एडवाइस क्या ही देंगे. वो कभी आप 4 लोगों से जाके पूछेंगे तो आपको 4 अलग अलग वर्जन्स उनके मिलेंगे. सो प्लीज़ टेक प्रोफेशनल हेल्प. आई एम गोइंग टू पुट काव्यल्स डिटेल्स ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन. एंड इफ़ यू जस्ट वॉन्ट समबडी टू लिसन टू यू, भड़ास निकालनी है तो अनोनिमस मैसेज के सेक्शन में आप मुझे भी लिख सकते हैं. आई पुट माई वेबसाइट डिटेल्स ऑल्सो. बट for all those of you who are struggling with a relationship like this, I just want to say, don't just sit there, do something. And please share this video ताकि उस इंसान तक पहुँचे जो इस बारे में कुछ कहना चाहता है या समझ नहीं पा रहा है, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, ठीक है गलत है. Maybe this is the video that they are waiting to watch. So please share this video. And you're watching Candid Confessions with Chavi. This is both of us signing out. Love and peace from us to you. Our usual drill, जो भी अपने अपने equipments के पास हैं, बैठ जाएं. Put this room in a purple ball of light, everyone, that is super protected. जो आपका equipment है, imagine करिए that is also growing roots, going deep into the center of the earth. It's protected by the earth, it's grounded, it's rooted. अब जिसको रूम में जो भी anxiety है, जो भी stress है, imagine that it's leaving the body. Let's give ourselves a round of applause to raise the vibration of this room.